Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. It's compound. Sir. Carbon and its compound. In this chapter, Good morning, sir. good morning. Yesterday, day before yesterday, we have discussed about the, you can say, covalent bonding in the case of hydrogen, in the case of, you can say, chlorine, in the case of, you can say, oxygen and the nitrogen. Now today, we will see about the covalent bonding that is found in a carbonic compound, that is a simple compound that is known as CH4, which is also known as methane. क्या कहा जाता है? Methane कहा जाता है. We will see the arrangement, how the carbon is attached with the, you can say, 4 different hydrogen atom. Now, as you see, carbon, the atomic number of carbon is 6, and the, you can say, what is the, are you listening? Yes, sir. Atomic number of carbon sir. is 6, and 2 and 4 will be arrangement of the electron. In the case of hydrogen, there is only one atomic number, and the arrangement will be like this. Now, if you want the structure, to draw the structure of methane, we have to take carbon, this one. Carbon have 4 electron. Just see 1, 2, 3, and 4. Now, about the hydrogen, hydrogen have 1 electron. Just see here, hydrogen have 1 electron. Here one more hydrogen, it will have also 1 electron. Here one more hydrogen, it have also 1 electron. Now, about the octet, just see here, 2 electron. The octet of hydrogen is completed or not? हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना? Not. हाँ, के सेल Yes, में sir. दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अबाउट दिस हाइड्रोजन, इफ यू Yes, sir. then the octet is completed. Am I right? About this hydrogen, Yes, 2 sir. electron is there and the octet is completed. About this hydrogen, if you will see, then 2 electron and the octet is completed. About this hydrogen, just see, 2 electron is there and the octet is completed. Now the case come with the carbon. Carbon needs 8 electron, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. 6 to 8. Yes, the octet of carbon is also full. 2 to 4, 4 to Sir. 6 to 8. हाँ बोले, हाँ बोले. Sir, octet मतलब. Octet मतलब the noble Octet. gas configuration, like 2, 8, 8, or you can say 18, the last is. K सेल में 2 होना चाहिए, L Yes, सेल sir. में 8 होना चाहिए, M सेल में 8 होना चाहिए, ऐसे करके. That is known as the octet. Have you got it? Okay, sir. Now, कार्बन में Okay, 6 sir. होते हैं, Yes, sir. तो सर कहाँ है? now, here we can see one more thing, that how many, you can say, which type of bond is present? Sir,
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलते जाएं। सर ये कार्बन है हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना? हाँ शेयर करें। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट? एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, आंसर इसका हो जाएगा Methane. यस, कोवेलेंट बॉन्ड। द नेचर ऑफ द बॉन्ड इज कोवेलेंट, नॉट द आयनिक। कोवेलेंट Covalent bond. is present. It's okay. दूसरा क्वेश्चन इसमें हो सकता है, हाउ मेनी bond is Present in it. present? तो इसका जरा बताएं, Two हाउ pairs. मेनी बॉन्ड? 1 2 3 दो दो चार 4 है ना? क्या लिखेंगे आंसर? 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल है ना, डबल तो नहीं है ना? सिंगल डबल आपको बताए थे ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन में डबल था, नाइट्रोजन में ट्रिपल था, है ना? हाइड्रोजन में सिंगल। 4 पेयर ऑफ सिंगल। शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 4 सिंगल बॉन्ड is present. So what I mean by 4 single? Single मतलब sharing of 1 pair of electron. Double means sharing of Sir, 2 pair of single electron. जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल कहलाएगा, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल कहलाएगा, जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। सर तो 4 कहाँ से आ गया? बॉन्ड 4 है ना, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. प्रेजेंट इन CH4। अगर लिखेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग या डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग लिखेंगे ना? हाँ, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ये आ गया टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग तो वो सिंगल कोवेलेंट हो सकता है, डबल कोवेलेंट हो सकता है, ट्रिपल ये कोवेलेंट। तो सिंगल कोवेलेंट ही है ना? हाँ, तो इसीलिए मैंने लिखा है ना सिंगल कोवेलेंट। आउटर मोस्ट शेल का याद तो है, ठीक सर। एक्सक्यूज मी हाँ बोलें। सर, जब एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है सभी तभी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तभी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को केवल शेयर करता हो तो सिंगल कोवेलेंट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता हो तो डबल कोवेलेंट, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता हो तो ट्रिपल कोवेलेंट। सर अगर गेन करेगा या लॉस करेगा गेन तो करेगा, लूज करेगा, किस दैट इज bond में आयनिक कहेंगे? कंपाउंड। नो, दैट इज नॉट ए कोवेलेंट कंपाउंड। metal हाँ, and covalent bonding may be single covalent, double covalent or triple covalent. Have you got it? सर इसमें आउटर मोस्ट शेल का सर दिखाते हैं मतलब आउटर बस। मोस्ट सेल का, बस अंदर वाले सेल की बात नहीं होती है। जैसे कार्बन का 6 हमने बताया था तो 2 4, तो बस बाहर वाले 4 को ले रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, केवल बाहर वाले को, अंदर वाले को नहीं लेते। Have you got it? यस सर। सर मत Yes. मत करिए सर, रुकिए सर। अच्छा सॉरी। सर नीचे वाला इरेज कर दिया। ये लिखा 4 कोवेलेंट सिंगल बॉन्डिंग, यही था। Now about the electrops. One thing is there, since there is no formation of the ions, so they are, you can say, bad conductor of the electricity. That means covalent bonding are the bad conductor of the electricity. And the other thing is that covalently bonded molecule have the
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्डिंग होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। सर कल आयनिक बॉन्डिंग बताए थे। हाँ, कोवेलेंट बॉन्डिंग बता रहे हैं। इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मगर ये CH4 जैसे एक CH4 यहाँ पे है और एक CH4 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का बॉन्डिंग जो होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। और वीक होने से इसका वीक होता है, वीक मतलब कमजोर, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। गॉट इट। कंपाउंड के बीच में यस सर, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो तो स्ट्रांग होगा, अगर दो मीथेन के बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो आपका वीक होगा, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका लो होता है। लो। इसके अलावा यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, प्लस और माइनस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस वजह से नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in spite they are bad conductor of the electricity. Have you got it? गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग। अभी कौन आया? यस सर। सोए थे क्या? सर लिंक अभी आया है। सर न्यू लिंक कंप्लीट तो आई है। अभी लिंक सबसे बढ़ाई है। सर लिंक नहीं आया था। फर्स्ट लिंक आया तो सर पासवर्ड मांग रहा था। फर्स्ट लिंक आया तो पासवर्ड मांग रहा है। What happened? सर जो बताएं फिर से बता दीजिए। सर डेटा ग्रुप है ना, अगेन बता दीजिए। ये मीथेन वाला एक बार और बता दे क्या? यस सर। यस सर। जस्सी सर कल क्या बताए थे कल? कल वाला अरे हाइड्रोजन का बताया था, ऑक्सीजन का परसों बताया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन इनका बताया था बॉन्डिंग। कार्बन कार्बन के 6 है एटॉमिक नंबर, 2 और 4 हो गया, और हाइड्रोजन इसके एटॉमिक नंबर 1 तो 1 हो गया। अब अगर इसका हम बनाते हैं तो ये कार्बन कार्बन के 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 3 4। हाइड्रोजन का देखें तो 1 है, तो हाइड्रोजन ले लेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे दे दिया, इसने डोनेट कर दिया, यहाँ पे 1 लिए इसने डोनेट कर दिया, यहाँ पे लिए इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहाँ पे लिए तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब अगर ऑक्टेट की बात करें तो यहाँ देखें तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन का देखें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का देखें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन की रही बात तो कार्बन का देखें तो 2 2 4 2 6 और यहाँ पर आकर के 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। तो यानी कि हाइड्रोजन के भी सारे हाइड्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए चारों के, और कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, यानी कि ये एक नोबल स्टेट में आ गया, ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। अब रही बात कि इसके अंदर आपके कितने कैसे बॉन्डिंग पाए जा रहे हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसा होता है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग पाया जाएगा दैट विल बी योर कोवेलेंट बॉन्डिंग। कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन कोई पूछता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग तो पाया जा रहा है मगर कितने कोवेलेंट बॉन्डिंग और किस टाइप के कोवेलेंट बॉन्डिंग पाए जा रहे हैं, तो वहां पर आपका आंसर दूसरा वाला जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। सिंगल है ना, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग is found
is found in methane. अभी आगे आपको इससे जो अलग कंपाउंड बताएंगे उसके अंदर हम दिखाएंगे कि उन सब के अंदर बढ़ भी सकता है, डबल भी बॉन्डिंग हो सकता है, या आपके 4 से ज्यादा 7 भी पाए जा सकते हैं, 8 भी पाए जा सकते हैं, वो अलग की चीज है। आगे जब बढ़ेंगे जैसे जैसे लेसन में वैसे वैसे हम समझेंगे। वर्सेटाइल एलिमेंट क्या होता है? अभी तो आया ही नहीं, आगे है ना वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल एलिमेंट, द एलिमेंट शोइंग you can say some special property. Carbon is a versatile element because it's special property. और I'll tell you on that. सर थोड़ा Cl2 Okay. Cl2 का बॉन्डिंग बताइए, दिखाइए। क्या चीज? Cl2 का बॉन्डिंग एक बार दिखाइए सर, उस दिन बताया। Cl2 का मैं रवि वेट सर। बेटा मिटा दे। यस सर। यस सर। एक्सेस ले लो। Cl2 का बॉन्डिंग क्या है? तो Cl का अगर हम देखें क्लोरीन का, तो क्लोरीन आपका होता है 2 8 रविशंकर 7, यही ना? अब क्लोरीन का अगर हम रविशंकर तो 2 2 4 और राहुल बाहर वाला ले रहे हैं, 2 6 और 1 7, ठीक है। दूसरा एक और देते हैं यहाँ पर रविशंकर इसका 2 4 2 6 सर 2 क्यों ले रहे और हैं? 1। हाँ कौन बात कर रहा है? व्हाट हैपन? 2 क्यों ले रहे हैं सर? हम चाहें तो इसको डॉट से भी ले सकते हैं आसानी से समझने के लिए। इस क्लोरीन के स्ट्रक्चर को हम डॉट से ले लेते हैं। 2 2 4 2 6 सर 2 बार 7। क्लोरीन। अब जरा देखें इसका, इस क्लोरीन की बात करें तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस सर। अब इस क्लोरीन का देखते हैं तो ये देखिए 2 रविशंकर 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया। इस क्लोरीन का कंप्लीट हो गया। कौन बोल रहा है? अब इसके बीच में बॉन्ड कैसा बेटा? तो शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवेलेंट। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। Have you got it? नो सर। यस सर। कौन नो सर है? Who is asking for रविशंकर? कौन है ये? राहुल सर, राहुल है। राहुल, हाँ क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। मेरा क्लास करना हो तो क्लास करो, नहीं तो बाहर हो जाओ। हमें ना करना पड़े आपको बाहर। मिटा दे इसे। हाँ यस सर। सर में 2 या 8 हो तो इसका तो नहीं ना करेंगे ये। क्या कह रही हो? लास्ट में अगर 2 या 8 हो, लास्ट में क्या दिया हुआ? 2 और 8 हो, जैसे 7 हो जाते हैं। ये वाला
यस सर, वहाँ पे 8 हो अगर तो नहीं ना करना पड़ेगा नहीं, इसे। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं, केवल लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। यस सर, लेकिन अगर लास्ट पे अगर 8 हो तो इसका ये करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं हो सकता है ना। अगर लास्ट में 8 होगा तो वो आर्गन है, मान करके चलो 2 8 8, तब तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस है। सर हाँ, ये ना सर आयनिक बॉन्डिंग बनाएगा ना तो कोवेलेंट सर बॉन्ड। उसमें से हाँ बोलें। सर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्या होगा? किसमें से? सर आर्गन में से एक। बेटा आर्गन में से एक इलेक्ट्रॉन वो क्यों लॉस करेगा? सर नहीं करेगा। नहीं भैया, जब वो सेटिस्फाइड है। करेगा। ये सारे लोग क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन या फिर शेयर? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फुलफिल्ड नहीं होते हैं। और जिसके आउटर मोस्ट में फुलफिल्ड हो जाए वो कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ना तो गेन करेंगे, ना तो शेयर करेंगे, यानी कि वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। इसीलिए उनको नोबल गैस कहा। सर इसमें कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ये किसमें? सीएल वाले में? ये सीएल वाले सीएल में सर वन पेयर सिंगल। यस सर। एक जोड़ा, एक ये क्लोरीन दे रहा है, एक ये दे रहा है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड है। वही 2 जोड़ा होता तो डबल बॉन्ड हो जाता, और 3 होता तो ट्रिपल हो जाता। हैव यू गॉट इट? यस सर। नहीं रबिट? यस सर। तो जैसे आप कह रहे हैं सर कि मान लीजिए ये एक दे देगा, फिर जब हाँ। इसको लेना पड़ेगा तो उसका भी तो फिर कम होगा ही ना दूसरे वाले सीएल का। कहाँ कम हो रहा है जी? कहाँ कम हो रहा है? बाद में इसके पास बाद तो में कम 7 नहीं है ही। होगा। जस्ट लिसन, हाँ इसके पास तो 7 है ही, अपना 7। हाँ, इसने यस एक सर। दे दिया, इसका लेकर के 8 हो गया ना इसका। ये यस वाला सर, हो गया। इलेक्ट्रॉन, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ ये इसके भी है यस। और इसके भी हैं, दोनों के हैं। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज दोनों में है ना सर? हाँ, दोनों में है। अपने ये में 2 साझा कर इलेक्ट्रॉन सर, ऐसा ठीक नहीं है कि ये इसका है, ये इसका है, ये दोनों का है। सर अपने में डील ठीक किए है। हैं। हाँ, शेयरिंग मतलब यही होता है कि भाई, साझा अच्छा कर। एक जस्ट एक कॉमन एग्जांपल लो। मान करके चलो मेरे पास ऐसी सिचुएशन हो कि आई हैव 7 रुपीज, मेरे पास 7 रुपया है और मेरे को 8 रुपया चाहिए एक स्कूल खोलने के लिए, ठीक है? और आपके पास, ठीक है, आपके पास भी 7 रुपया है और आपको भी क्या करना है, स्कूल ही खोलना है। 8 रुपया चाहिए आपको भी स्कूल ही खोलने के लिए। अब एक बात बताओ, इस कंडीशन में क्या एराइज होगा? क्या 7 रुपया आपको दूंगा? बताओ। नो 7 रुपया सर। मैं आपको दूंगा? नो सर नहीं आप देंगे। मेरे नो को सर। देंगे? नो सर। ना आप नो देंगे सर नहीं ना देंगे। मैं दूंगा, दोनों में से कोई नहीं देगा। अब जब दोनों नहीं देंगे तो इससे बढ़िया कंडीशन ये अराइज हो जाती है कि हम क्या करें कि इसी साझेदारी कर लें। शेयरिंग करके और कह सकते हैं कि स्कूल बना लें, थोड़ा बड़ा बना लें, और उस स्कूल में हम लोग दोनों का पार्टनरशिप रहे, यानी कि मेरा भी चले और आपका भी चले, और जो प्रॉफिट आएगा उसमें 50% आप ले जाएं और 50% कौन ले जाए? मैं ले जाऊं। हम ले जाए। ये शेयरिंग होता है, हम समझ में आए? यस सर, शेयरिंग आगे। का मतलब यही होता है। तो 14 रुपया हो जाएगा तब। तो 14 रुपया नहीं ना होगा, मतलब केवल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बड़ा हो जाएगा। करेंगे। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, इन्हीं का शेयरिंग आपस में करेंगे। शेयरिंग। समझ में आए? सर थोड़ा यस बेरिलियम सर। का बताइए। बेरिलियम का बताइए तो केवल थोड़ा एक एक का ही करेंगे, ताकि मैं जब दे दूंगा तो आपका 8 हो जाएगा सर। और आप जब दे देंगे तो मेरा भी 8 हो जाएगा। तो थोड़ा बेरिलियम का बताइए। किसका? बेरिलियम पूछ रहे हैं सर। बैरियम? बेरिलियम। बेरिलियम का क्या जरूरत है? उसका तो बेरिलियम का कौन सा कंपाउंड है? पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा? कार्बन
कार्बन कार्बन यूनिट कंपाउंड। तो बेरिलियम की यहाँ क्या जरूरत है भैया? कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िए, कार्बन की प्रॉब्लम को समझिए। इलेक्ट्रॉन जरा देख लेते। इलेक्ट्रॉन पहले समझे इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कार्बन के ही बने हुए कंपाउंड होते हैं। द कंपाउंड ऑफ कार्बन, compound of carbon that have similar component एक बार कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी बता दीजिएगा। हाँ बता देंगे इसके बाद। बट shows different physical property due to the different arrangement of carbon atom. अब देखिए इसके कौन कौन से पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में पहला आपका होता है डायमंड। दूसरा कौन सा होता है बेटा? ग्रेफाइट। और तीसरा बकमिनिस्टर फलर। बकमिनिस्टर सर नहीं दिख रहा है। आपके बुक में नीचे दे रखा फुटबॉल के शेप का है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यस सर दिया है। तीसरा बकमिनिस्टर फलर। ठीक। यस सर। लिखिए। यस सर। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है। सारे ये तीनों के तीनों, चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे आपका बकमिनिस्टर फलर हो, ये तीनों के तीनों बने होते किस चीज के? ऑफ द कार्बन ओनली, कार्बन के बने होते हैं। बट द डिफरेंट अराइजेस इन, यू कैन से, इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन। कार्बन का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट सबके अंदर अलग अलग होता है, बोल करके इन सब की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट हो जाती है और इसी वजह से एक दूसरे से एकदम भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम आपका कह सकते हैं कि ज्वाइंट होता है कितने के साथ? 4 अन्य कार्बन एटम के साथ। बता दें। रुकिए सर थोड़ा। अच्छा रुकिए। नोट कर। हाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक बार और बताइए। इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन के ही पाए जाने वाले कंपाउंड है जो कि सिमिलर कंपोनेंट यानी कि कार्बन के बने होते हैं, मगर उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन आपके डिफरेंट पाए जाते हैं। हो गया सर।
देखिए डायमंड और ग्रेफाइट, ज्यादा चर्चा इन्हीं दो की है, पहले इसी के बारे में हम देखते हैं। डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम अन्य 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। कितने? 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है विद द सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पाएगा। और वहीं पे आपका ग्रेफाइट का देखेंगे तो एक कार्बन एटम आपके 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, 4 नहीं बल्कि 3। अब आप कहेंगे सर 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका एक कार्बन का वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि 6 ही ना हो रहे हैं, 2 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 6 ही ना हो रहे हैं। चाहिए कितना चाहिए सर 8 चाहिए। करेक्ट। यहाँ पर 2 और चाहिए तब ना 8 होगा। यहाँ पर तो 8 है सर। 2 4 2 6 2 8, मगर यहाँ पर तो 8 नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जगह आपका डबल बॉन्ड पाया। डबल बॉन्ड पाए जाने का मतलब यहाँ कितना हो गया? 4 और यहाँ पर 2 6 और 2 8। मगर एक चीज है कि ये वाला जो कार्बन का नीचे वाला हिस्सा है ये फ्री है। फ्री होने के वजह से इसका अरेंजमेंट कैसा हो जाता है? हेक्सागोनल। इसका अरेंजमेंट हो जाता है हेक्सागोनल, और इस वजह से इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि एक इसका हिस्सा क्या है? फ्री है। और जबकि इसके अंदर देखें तो इसके चारों हिस्से आपके कवर हैं किसके साथ? बाकी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में एक भी कार्बन का एंड फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? नो सर। इस वजह से डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मगर यहीं पर ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी। सर क्या लिखा? ऑक्टाहेड्रल लिखे स्ट्रक्चर। हाँ बेटा, ऑक्टाहेड्रल। फ्री इलेक्ट्रॉन इज फाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरा चीज अगर इसमें देखें तो इसमें आपका sp3 बॉन्डिंग पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? sp3 बॉन्डिंग। और इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? sp2। ये सब क्या होता है सर? sp3 बॉन्डिंग का मतलब ये रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके वजह से डायमंड इज द टफेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे मजबूत चीज है संसार का, टफेस्ट मटेरियल। और वहीं पर अगर ग्रेफाइट की बात करें तो sp2 बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये स्लिपरी होता है। स्लिपरी मतलब फिसलने वाला। और इस वजह से इसका इस्तेमाल कई बार किस चीज के लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जानते हैं? लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ग्रीस वगैरह होता है ना, वैसे फ्रिक्शन, ग्रीस वगैरह। हाँ, वैसे लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। टायर में। इसके अलावा एक चीज और डायमंड का देखें तो डायमंड आपका टफेस्ट हो गया, और इसके अलावा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। डायमंड देखिए नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इस वजह से बैड कंडक्टर हो जाता। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बता दीजिए एक बार। बॉन्डिंग पाई जाती है, टफेस्ट मटेरियल हो जाएगा। ग्रेफाइट के पास आपके फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हेक्सागोनल एरे पाया जाता है, ये गुड कंडक्टर होता है। sp2 बॉन्डिंग पाई जाती है, स्लिपरी होता है, इसलिए लुब्रिकेंट के रूप में मशीन के अंदर यूज किया जाता है। अब इसके बाद आप हाँ बोलें।
ग्रेफाइट मशीन के अंदर भी हाँ यूज किया जाता है। क्या क्या ग्रेफाइट मशीन ग्रेफाइट में, हाँ बोलो वो ग्रेफाइट मशीन में भी यूज किया जाता है। ग्रेफाइट में बेटा ये देखिए तीन तरफ से ये तीन कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक जगह डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये वाला एंड जो होता है फ्री होता है, फ्री होने की वजह से ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से गुड कंडक्टर होता है। अरेंजमेंट इसका हेक्सागोनल एरे जैसा होता है, आपके बुक में बनाया गया हुआ हो, हेक्सागोनल जैसा होता है, और इसके अलावा ये गुड कंडक्टर होता है। इसके अलावा अरेंजमेंट जो होता है sp2 पाया जाता है, जबकि डायमंड के अंदर sp3 पाया जाता है। sp3 के वजह से डायमंड टफ होता है और sp2 के वजह से ग्रेफाइट आपका स्लिपरी होता है। सर हाँ सर हाँ बोले सर sp3 का नाम क्या है, असली नाम क्या है सर उसका? एक नेम होगा ना देखो कुछ। DF सर ऑर्बिटल होते दिखाई नहीं हैं, दे रहा है। नहीं दिख रहा है, sp ये अलग अलग ऑर्बिटल पाए जाते हैं जो क्लास 11 में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे। अब इसमें होता है। S और P, जब S का और P का बॉन्डिंग बनता है इसी को sp बॉन्डिंग कहते हैं। अब एक S का और कह सकते हैं P का अगर हो तो इसको sp3 कहते हैं, जो कि डायमंड में पाया जाता है, और एक अगर S हो और दो अगर P हो तो इसको sp2 का है। सर ये S क्या है उसमें? हाँ? S क्या है उसमें सर? S मतलब S मेटल ऑर्बिटल है। नहीं कहते हैं, जैसे बनाया जाता है आपने देखा होगा S ऑर्बिटल जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। P ऑर्बिटल जो बनाया जाता है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। 8 समझ में आया? सर डायमंड को ऑक्टाहेड्रल कैसे कहेंगे? तो इसका और इसका जो बॉन्डिंग होता है उसी को sp बॉन्डिंग कहते हैं। हाँ डायमंड और डायमंड को ऑक्टाहेड्रल कैसे कहेंगे? डायमंड को ऑक्टाहेड्रल कैसे कहेंगे? अरे बेटा ये चारों तरफ से इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, तो ऑक्टाहेड्रल नहीं कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर जरा बुक में आप देखिए, एक भी कार्बन एटम के क्या खाली है? नो सर। जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, एक भी कार्बन एटम आपका खाली नहीं है, इसलिए रिजिड और ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। और जबकि ग्रेफाइट में देखेंगे कि इसके खाली होते हैं। हाँ सर sp2 या KLM और दोनों सेम होता है। अभी हम लोग देखो क्लास 10th में 9th में हम लोग ये SPDF नहीं पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर KLM पढ़ते हैं, ठीक ना? बट जब तुम 11th में पहुंच जाओगे तो ये KLM नहीं पढ़ोगे, तब तुम क्या पढ़ोगे? के अंदर होता है बॉन्डिंग दो। बिटवीन SPD, इसके बीच में आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे। समझ में आया? इस वजह से आपको थोड़ा डाउट लग रहा है ये चीज समझने की, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़े क्लास में। हाँ बोले, अभी इतना खाली कर लेने